کلام مقدس میں سے دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ 16ویں آیت۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت خداوند تو نے اپنے بندہ کو کلام کی خدمت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ تو اپنا زور بازو بڑھا کر اپنے بندہ کو چھو، سراپا اپنے جلال سے معمور کر، ہونٹوں کی تفتیش کر، تاکہ تیرے منہ کی باتوں کو تیرے لوگوں تک دلیری سے پہنچا سکوں۔ اے پاک روح، یسوع کے روح، یسوع کو جلال دینے کے لیے اپنے بندہ کی رہنمائی کرنا اور کلام کو بیان کرنے کا بھاری فضل بخش دینا۔ آج تیرا بندہ بڑے بادل کی طرح کلام کی بارش کے لیے استعمال ہو اور تیرا نام عزت پائے، تیرا نام جلال پائے۔ اپنے بندہ کو ہمیشہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، اور آج کا کلام ایک ایک روح بدن جان کے لیے برکت کا باعث ہو۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں۔ آج میرے میسج کا عنوان ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ۔ نور تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ کالے دھندے، کالی کرتوتیں تاریکی میں ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ چور بھی تاریکی ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ کب تاریکی ہو اور میں جا کے اپنا کام کروں۔ عزیزو، تاریکی کے کام جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں، وہ ابلیس کی طرف سے ہیں، اور ابلیس جو کسی بھی انسان کو استعمال کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کا اثر اس پہ ہو۔ لیکن ہم جب خداوند کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، اس کے حلقہ احباب میں آ جاتے ہیں، تو خداوند ہماری محافظت کرتا ہے اور ہر طرح کی بدی کی تاثیروں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے مسیحی لوگوں کو، ایمانداروں کو، مقدسین کو دنیا کا نور قرار دیا گیا۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو۔ دن جو ہے روشنی ہے، اور جو رات ہے وہ تاریکی ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے ہیں۔ اسی طرح فلپیوں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، 2 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ مسیحی لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بڑا فخر ہے، بڑا استحقاق ہے کہ خداوند یسوع مسیح انہیں دنیا کا نور کہہ رہا ہے۔ چراغ روشنی کی وجہ سے دور ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب ان کی روشنی دوسروں تک پہنچتی ہے تو وہ پہچانے جاتے ہیں، اور ہمیشہ چراغ کو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی جو ہے سب تک پہنچ سکے۔ یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے وہ
दावे जिसमें उसने कहा आई एम, मैं हूँ, इसी तरह उसमें खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। यीशु मसीह बेशक नूर का मंबा है और वो नूर का सरचश्मा है, और मसीही लोग जो हैं वो नूर को मुनक्कस करते हैं। जिस तरह चाँद, सूरज, सितारे जो हैं वो चमकते हैं और सूरज से रोशनी लेकर चाँद जो है अपनी रोशनी को मुनक्कस करता है, इसी तरह मसीही लोग जो हैं मसीह खुदावंद के जलाल से अपनी रोशनी को मुनक्कस करते हैं। हमें सूरज से रोशनी की ज़रूरत नहीं। हमारा मसीह खुदावंद आफ़ताब सदाकत है और उसकी किरणों से हमें शिफा होती है। मसीही खुदा के चुनिंदा लोग हैं, उसके मखसूस किए हुए लोग हैं। बेशक हम गुनाह में थे, लेकिन खुदा ने हमें घूरे से उठाया और एक मुक़द्दस कौम, शाही कहनों का फ़िरका और ख़ास उम्मत बना के अपने लिए मखसूस किया। ये उसका रहम है, उसका फ़ज़ल है। लेकिन मसीही लोगों को खुदा ने नूर कहा है, दुनिया का नूर कहा है, जो शहर पहाड़ पर बसा है, यानी सर बुलंदी पर है। बुलंदी पर इसलिए कि उसकी रोशनी सब लोगों तक पहुंच जाए। नूर का काम है चमकना, दूर से ही नज़र आ जाना। मसीही लोग जब दुनिया में रहते हैं, नूर की हैसियत से जब वो चमकते हैं तो उनकी रोशनी जो है दूसरों लोगों तक पहुंचती है। मसीह खुदावंद दुनिया का नूर है और उसने अपने नूर से हमें मुलव्वस किया है और हमें भी नूर कहा है। हमारी रोशनी जब आदमियों तक पहुंचती है तो लोग मुनव्वर होते हैं, उनके बातन रोशन हो जाते हैं। रोशनी जो है मसीह खुदावंद की तालीम है, उसका कलाम है, और चिराग जो है वो खुदाम है, खादिम है, ईमानदार है। और जो चिराग दान है जिस पे चिराग रखा जाता है वो कलीसियाँ हैं, वो ईमानदार हैं। मसीह खुदावंद ने यही हुक्म दिया है कि चिराग जलाकर चिराग दान में रखा जाता है ताकि उसकी रोशनी जो है सब लोगों तक पहुँचे। मसीही लोग जो हैं उनकी रोशनी छुप नहीं सकती, वो रोज़े रोशन की तरह अय्यां होते हैं और रोशनी हमेशा ऊंची जगह पे ही रखी जाती है। अगर हम मसनूई रोशनी को ही देखें तो हम ऊंची जगह पे नस्ब करते हैं ताकि उसकी रोशनी जो है हर जगह पे पहुंच जाए। अगर आपने बल्ब लगाना हो तो नीचे तो नहीं लगाएंगे ना, ऊपर ही लगाएंगे ताकि उसकी रोशनी जो है दूसरों तक पहुंचे। रोशनी छुप नहीं सकती। मत्ती 5:15 में लिखा है, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। बेशक खुदाम जो है चिराग हैं और चिरागदान कलीसियाएँ हैं। यीशु मसीह की ये मर्ज़ी है कि हम उसकी रोशनी को लेकर, उसकी तालीम को लेकर दूसरों तक जाएं और इस तालीम को सिर्फ़ अपने तक ही महदूद ना रखें बल्कि दूसरे लोगों तक लेके जाएं और यूं दीप से दीप जलते जाएं और लोगों के बातन रोशन होते जाएं। फिर लोग हमारे नेक कामों को देखेंगे जो हम कर रहे हैं मसीह की खातिर। हम उसके हमकार बन के, उसकी टीम का हिस्सा बन के उसके लिए काम करते हैं। तो जब हमारे नेक कामों को लोग देखते हैं तो इस नेकी को वो पसंद करते हैं और उस आसमानी बाप की तमजीद होती है। हमें इस काम को छोटा नहीं लेना चाहिए बल्कि इस काम को बड़ा लेना चाहिए और खुदावंद के हमकार बन के उसकी रोशनी को लोगों तक लेके जाना चाहिए। यहाँ पर ज़ोर एक मसीही के किरदार पर है और उसकी खिदमत पर। जिन लोगों को
کی زندگیوں میں مسیح خداوند نظر آتا ہے، جن لوگوں کی زندگی میں مسیح خداوند دکھائی دیتا ہے، ان کی دلکشی ان کے الفاظ سے زیادہ ان کی فصاحت اور بلاغت سے تعلق رکھتی ہے۔ جو وہ کلام کو کس طور پر بیان کرتے ہیں، کس طور پر کلام خداوند کی تعلیم کو لوگوں تک لے کے جاتے ہیں، یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو کرنا ہے۔ جب ہم خداوند کے مخصوص لوگ بن جاتے ہیں، اس کے چنیدہ لوگ بن جاتے ہیں، اس کی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کے ہمکار بن جاتے ہیں، تو ہمیں خداوند کی روشنی کو نامساعد حالات میں بھی ان لوگوں تک لے کے جانا ہے جو گل سڑ رہے ہیں، جو گناہ کی زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں اور اسی زندگی میں وہ مر مٹنے کو ہیں۔ تو ہمیں ان کے لیے رکھنے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور جب ہم مسیح خداوند میں بلاغت پکڑتے ہیں، میچورٹی حاصل کرتے ہیں، تو ہم مسیح میں بڑھتے جاتے ہیں، اور ہمارا ہمیشہ یہ رویہ، یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ مسیح خداوند ہم میں بڑھتا جائے اور ہم لوگ کم ہوتے جائیں، اور ہمیں ہمیشہ اس کو اول درجہ دینے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں۔ اور جب ہم اس کے ہم شکل بن جاتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چل جاتے ہیں، تو ہم اس کے کام کو بڑی ہی تندی کے ساتھ، بڑی ہی جاں فشانی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے کھیت میں ایک وفادار مزدور کی حیثیت سے کام کرنے سے باز نہیں رہتے، اور ہم وفادار مزدور کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ خدام کو کلیسیا میں کام کرنے کی ضرورت ہے، جاں فشانی کرنے کی ضرورت ہے، اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدام کے لیے خاص، ایمانداروں کے لیے خاص لکھا ہے کہ وہ لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے خدام کی خدمت کریں، اس کا پرچار کریں، اس کی منادی کریں۔ سو ہمیں خوشی سے خداوند کی منادی کرنی ہے، اور جب ہم خوشی سے خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنا وقت خداوند کو دیتے ہیں، اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو پسند کرتا ہے۔ روپیہ پیسہ ہی نہیں خداوند کے حضور میں دیا جاتا، بلکہ اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ، اپنا توڑا اس کے لیے جب ہم چمکاتے ہیں تو خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آپ مسیح کی روشنی کو، اس کی تعلیم کو لوگوں تک لے کے جاتے ہیں، اور کھوئے ہوئوں کو خداوند کے پاس لے کے آتے ہیں۔ مسیح خداوند بھی یہی مشن لے کے آیا، اور اس نے کہا میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ سو ہمیں بھی کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور انہیں راہ راست پر لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں تو ان کو واپس لے کے آنا ہے، برگشتہ لوگوں کو واپس لانا ہے، تاکہ وہ خداوند میں پھر قائم ہو سکیں۔ اور جو لوگ رکھنے میں کھڑے ہوتے ہیں اور برگشتہ لوگوں کو واپس مسیح میں لے کے آتے ہیں، وہ مسیح کے لیے بہت بڑا کام کرتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے سندر اور پیارے قدموں میں آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس میں پھر سے بحال ہو جائیں۔ جب ہم اس کی راہ پر چلتے ہیں تو عزیزو، ہم اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعلیم کو، اس کی روشنی کو لے کر دوسروں تک لے جاتے ہیں۔ بے شک خداوند نے ہمیں چھوٹا توڑا دیا ہے یا بڑا توڑا دیا ہے، ہمیں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک پوئم جو اردو میں علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے، لیکن عزیزو اب اس میں بڑی ہی پنہاں بات یہ ہے کہ جو توڑا ہمیں دیا جاتا ہے اس کو ہمیں دوسروں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ایک بلبل جب ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا اداس
बैठा हुआ था। उसने सारा दिन उड़ने चुगने में गुजार दिया, अपनी खुराक उसने तलाश की, और जब रात हो गई, अंधेरा हो गया, तारीकी छा गई, तो वो एक दरख्त की शाख पर बैठ गया और अपनी सोचों में वो गुम हो गया कि मैं अब क्या करूं, मैं अपनी मंजिल पर नहीं जा सकता। तो अजीज़ो, उस तरफ से एक जुगनू का गुज़र हुआ। जुगनू ने बुलबुल से कहा, भाई क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो? तो उसने कहा, मैं आज सारा दिन मैंने लापरवाही की है, उड़ने चुगने में मैंने दिन गुजार दिया, और अब रात का वक्त है और मैं अपने घर तक, अपनी मंजिल तक नहीं जा सकता, अपने घोंसले तक नहीं जा सकता। तो जुगनू ने उसने कहा, मैं आपको राह दिखा सकता हूँ, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ। और फिर आप देखते हैं कि जुगनू ने अपनी थोड़ी रोशनी से उस बुलबुल को उसकी मंजिल तक पहुँचा दिया। बेशक आप मुकस्सीन हैं, आप ईमानदार हैं, आपके पास अगर छोटा तोड़ा है या बड़ा तोड़ा है तो आप उसको चमकाएं, जिस तरह जुगनू ने अपनी थोड़ी रोशनी से उस बुलबुल को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। आप उन लोगों के लिए जो दुनिया में इब्लीस के कब्ज़े में हैं, उसके कब्ज़े में फंसे हुए हैं, उनको छुड़ा के आप अपनी रोशनी से मसीह खुदावंद के फजल वाले तख्त के पास ला सकते हैं। आप अपने तोड़े को छोटा ना समझें, बल्कि उससे अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करें। खादिमों को भी ख़बरदार किया गया है कि वो वफ़ादारी से चमकें, ताकि उनकी रोशनी जो है आदमियों तक पहुँचे। हम सब ईमानदार मुकस्सिन खुदाम के मुकस्सिन लोग सब मसीह खुदावंद के हमकार हैं, उसके वफ़ादार मज़दूर हैं। हमें उसके खेत में काम करने की ज़रूरत है। जब हम एक वफ़ादार मज़दूर की हैसियत से काम करते हैं तो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद के जलाल के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। मसीह खुदावंद ने जो 8 दावे किए हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, राहक और ज़िंदगी मैं हूँ, भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, मैं अल्फ़ा ओमेगा इब्तिदा इंतहा हूँ, और दुनिया का नूर मैं हूँ। बेशक मसीह खुदावंद आफ़ताब सदाकत है और उसकी किरणों से हमें शिफा मिलती है। बनी इसराइल कौम जब मुल्क मिस्र से निकले तो खुदा उनके लिए दिन को बादल में और रात को आग के सतून में उनकी रहनुमाई करता था, और उनकी रहनुमाई भी करता था, उनकी मुहाफ़ज़त भी करता था। और जब आग का सतून दूर से नज़र आता था तो जंगली जानवर जो है दूर दूर ही रहते थे, और खुदावंद के लोग जो है बाहिफ़ाज़त अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक जाने के लिए खुदावंद ऐसा ही करता था। नूर बैरूनी सतह को रोशन करता है, और हकीकी नूर जो है हमारे बातन को, हमारे भीतर को रोशन करता है। नूर दीदनी तौर पर काम करता है। नूर जोरावर है, वो तारीकी में से गुज़र जाता है और तारीकी को हटा देता है, तारीकी काफूर हो जाती है, और नूर काम करता है, और नूर सरीहन खुल्लम खुला असर और रसूख ज़िंदगियों में भी छोड़ देता है। नूर खुदा के सच्चे इल्म के साथ वाबस्ता है, इसलिए हम मसीह खुदा उनको दुनिया का नूर कहते हैं, और वो कलाम है और वो इब्तिदा से ही है। और हम जानते हैं कि नूर इतना अहम है कि खुदा ने पहले ही दिन
कायनात की तश्कील के लिए नूर को ही बनाया था, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई पहले दिन ही। ज़बूर 36 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है और तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में भी लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यानी हमारा खुदा नूर ही नूर है, और जो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं वो भी नूर बन जाते हैं। ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में भी लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा नूर है और उसका कलाम भी नूर है। रोमियो के दूसरे बाब में यहूदी अपने आप को नूर होने का दावा करते हैं, लेकिन पौलुस रसूल ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी रोशनी अब ख़त्म हो चुकी है, वो मज़ीद अब रोशन नहीं है। और पौलुस रसूल ने ये बड़ी तहकीक से कहा है, और एक मारूफ रबी ने भी यरूशलेम को इसराइल का चिराग कहा है। लेकिन हम पहाड़ी वाद में मसीह खुदाम की तालीम को देखते हैं कि उन्होंने यहूदियों को नूर नहीं कहा, उन्होंने मसीहियों को दुनिया का नूर कहा है। हालेलुया। सो आप सब नूर हैं। हमें खुश होने की बात है कि मसीह खुदावंद ने हमें दुनिया का नूर कहा है। सो हमें नूर में चलने की ज़रूरत है। जब हम खुदावंद मसीह के पीछे चलते हैं तो हम नूर में चलते हैं। मत्ती 5 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। अगर चिराग जलाकर उसके ऊपर कोई चीज़ रख दी जाए, उसकी रोशनी को छुपा दिया जाए, कोई भी उसकी रोशनी को ना देख पाए, तो जो चिराग को जला रहा है वो बड़ी ही अहमकाना बात कर रहा है कि उस पर कोई पैमाना रख रहा है, उसकी रोशनी को छुपा रहा है। इसी तरह अजीज़ों, खुदा ने हमें तोड़े दे रखे हैं। अगर हम उन तोड़ों को छुपाते हैं, उन तोड़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन तोड़ों को चमकाते नहीं हैं, तो हम भी वही अहमकाना बात कर रहे हैं। जिस तरह चिराग जलाकर उस पर कोई पैमाना रख दिया जाता है। अजीज़ों, आप मसीह खुदावंद की सुने। उसने कहा है कि तुम दुनिया में नूर की तरह चमको, ताकि तुम्हारी रोशनी जो है दूसरों के सामने पहुँचे। उस रोशनी को महदूद ना करो, अपने तक महदूद ना रखो, बल्कि उस रोशनी को लेकर दूसरों तक जाओ। अगर आप में रोशनी है तो आप उस रोशनी को दूसरों तक लेके जाएं, खुदाम के कलाम को दूसरों तक लेके जाएं। आप उसकी मुश्किलात से बेशक हमकिनार होंगे, इज़हार सानी का खौफ आपकी ज़िंदगी में आएगा। जो लोग खिदमत करते हैं, जो लोग मसीह खुदावंद के लिए कुर्बान हो जाते हैं, आप जानते हैं कि मसीह खुदावंद के सारे शागिर्द सिवाय यूहन्ना प्यारे रसूल के, सबको किस तरह की मौत आई। वो खुदावंद की रोशनी को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाए। किसी को आरे से चीरा गया, किसी को उल्टी सलीब दी गई, और किसी को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला गया। लेकिन ये इज़हार सानी मसीहों के लिए है। लेकिन आप इसका खौफ ना करें, उस रोशनी को छुपाएं नहीं, उस रोशनी को पैमाने के नीचे ना रखें। अजीज़ों, मसीह खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए। यहाँ पर हर मसीही के किरदार पर और उसकी खिदमत पर, उसके नेक कामों पर जोर दिया गया है। जिन ज़िंदगियों में मसीह दिखाई देता है वो दूर से ही पहचाने जाते हैं,
दूर से ही जाने जाते हैं, क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अजीज़ों, नूर को चमकने दें, छुपाएं नहीं। अच्छे नेक काम जब आप करते हैं तो यही मसीह खुदावंद का मकसद है, और वो यही कह रहा है कि अच्छे काम करो, और नूर को चमकाना, रोशनी को दूसरों तक लेके जाना, ये बहुत अच्छा काम है। अच्छे के लिए यूनानी लफ्ज़ कीमोस इस्तेमाल किया गया है। वो खूबसूरती की मद में अच्छे होने के लिए मुराद रखा गया है। सो आप नूर को रोक नहीं सकते। रोशनी वो जलता हुआ दिया है जो कोई बुझा नहीं सकता। बेशक रोशनी तो मौजूद है, और फिर अगर आप उस पर पैमाना रखते हैं तो ये अहम काना बात है। यानी खुदा ने आपको रोशन किया है, आपको तालीम दी है, आपको नूर कहा है, और जब आप उस पर पैमाना रखते हैं उस खौफ से, इज़हार सानी के खौफ से, या आप अपनी गवाही छुपाते हैं, तो ये अहम काना बात है। आप अपने तोड़े को छुपा रहे हैं, आप उस नूर पर पैमाना रख रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं। अजीज़ों, अगर खुदा ने आपको तोड़ा दिया है तो आप उस पैमाने को हटा दें, नूर को चमकने दें। और जब नूर आपकी ज़िंदगी में चमकेगा और आपकी ज़िंदगी को लोग देखेंगे तो उनके बातन रोशन होंगे। आप बेशक उसमें रुकावट ना बने, बल्कि आप मिट्टी के बर्तन हैं। हो सकता है खुदावंद ने कौन से ख़जाने किसी के लिए आपकी ज़िंदगी में रख छोड़े हैं जिससे दूसरे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। सो आप अपनी ज़ात की फ़िक्र ना करें, अपनी शोहरत की फ़िक्र ना करें, अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र ना करें, बल्कि मसीह की खातिर ज़िल्लत भी आपको उठानी पड़े तो आप उस रोशनी को लेकर दूसरों तक जाएं। उस इज़हार सानी का खौफ आपकी ज़िंदगियों से कोसों दूर चला जाना चाहिए। आप रोशनी को लेकर दूसरों तक जाएं, क्योंकि जब हम इस मुबारकबादी को बयान करते हैं कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए हैं, तो आप उस पैमाने को जो रोशनी पे रखा हुआ है भला ताक रखें और मसीह खुदा में बढ़ें और उसकी रोशनी को दूसरे लोगों तक लेके जाएं, क्योंकि कलाम में यही लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। अगर मसीह खुदावन आपकी ज़िंदगी में रहता है, नूर आपकी ज़िंदगी में लबरेज है, तो आप उसे बदल नहीं सकते। ये बात तो ठीक है कि ऐसा नहीं हो सकता, ना उसे बुझा सकते हैं, लेकिन अजीज़ों इन सब बातों की वजह से एक ही बात समझ में आती कि सारी कायनात जो यहाँ पे ये सारी कायनात जो खुदा ने बनाई है, सारा जलाल उसी का है, सारी मामूरी उसी की है। सो आप अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की परवाह ना करें, बल्कि उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हों। और सबसे ज़्यादा अहम हमें उसके नाम को जलाल देना है, अपनी जान की परवाह नहीं करनी है। ऐ खुदावन, ज़बूर नवीस ने कहा, हमको नहीं बल्कि अपने नाम को जलाल बख्श। यही बात है जो मुझे पसंद है। अपने बाप की जो आसमान पर तमजीद करें, खुदा की कुदरत जो आपके अंदर में है, आपके अंदर पिन्हा है, और आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। वो दूसरे लोगों को छूती है और आपका मसा दूसरों में मुंतकिल होता है। सो आप उस रोशनी को ढांपे नहीं, बल्कि उसको चमकने दें और खुदा की तमजीद करें। खुदा की कुदरत आपके अंदर है, वो जारी और सारी है। सो
آپ کے اندر روح کا دریا بہتا ہے، آپ روح کو رنجیدہ نہ کریں، اس کو بجھائیں نہیں، بلکہ آپ خدا کے نور کو، اس کی روشنی کو ڈھانپے نہیں بلکہ چمکنے دیں، اور خداوند جو آسمان پر ہمارا باپ ہے اس کی تمجید کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔